In today's class, we are going to study vegetative propagation. पिछली क्लास में हमने asexual reproduction देखा था एंड आज वाली क्लास में asexual reproduction का जो सबसे लास्ट पार्ट है दैट इज vegetative propagation. We are going to study that. So vegetative propagation is a type of asexual reproduction, as we know from our previous class. So in plant, it involves the roots, the stems, and the leaves, and it does not involve seed formation. यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि अगर कोई प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीड नहीं बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल रोज, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, फॉर एग्जाम्पल अदर प्लांट्स लाइक जैस्मिन. So these plants can form seeds or may not be able to form seeds, but vegetative propagation में सिर्फ और सिर्फ रूट, स्टेम और लीव्स की बात करेंगे हम लोग. भले ही प्लांट सीड बनाए या नहीं बनाए, we are not considered with that. तो यहाँ पर रूट्स हैं, स्टेम्स हैं एंड लीव्स हैं. So we have to study different examples कि किस प्लांट में रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, किस प्लांट में स्टेम से होता है और किस प्लांट में लीव से होता है. तो we'll study that separately. Then first we are taking the plants in which roots help in vegetative propagation. So there are basically two types of roots which are taking part in vegetative propagation. The first one is taproot and the other one is fleshy roots. In taproot there are few examples like Dalbergia, this Dalbergia sisu is the same plant which we commonly know as shisham in Hindi. This plant has a very hard wood and it is used in doors and windows and making expensive furniture. तो इसी Dalbergia sisu को हम लोग हिंदी में शीशम के नाम से जानते हैं. And there are a lot of fleshy roots which also take part in vegetative propagation. For example, dahlia. It's a very common flower which you might be having in your homes. And the other is asparagus. Asparagus is eaten as a vegetable in India. It's a very common vegetable. Now we are going to study vegetative propagation through stems. So there are various modifications of stem which you might have studied in your 11th class. And we'll study each of them one by one. The first one is stolon. Example, strawberry. Okay. The other is runner. Example is grass. Other is sucker. Example is mint and chrysanthemum. Another example of vegetative propagation through stem is rhizome. Example is banana and ginger.
Another example is tuber. Example is potato. Another type is offset. Example is pistia. And Eichhornia. Okay, so these are the types of stems which are taking part in vegetative propagation. So here stolon का example हो गया strawberry, runner, grass, sucker, winter chrysanthemum, rhizome, banana and ginger, tuber, potato, offset, pistia and Eichhornia. Pistia is commonly known as water lettuce and Eichhornia is commonly known as water hyacinth. In 12th class, first chapter, you have to study something called terror of Bengal. So this is the plant which is called terror of Bengal. यहाँ पे दिक्कत इस प्लांट के साथ ये है कि ये प्लांट में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, तो इस प्लांट को उसी पर्पस से लगाया भी जाता था। लेकिन इस प्लांट के साथ दिक्कत ये है कि ये इतना ज्यादा स्पीडली रिप्रोड्यूस करता है कि वाटर से सारा ऑक्सीजन और फिर सराउंडिंग मीडियम से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरने लगते हैं। तो इकॉर्निया इसी वजह से टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो these are the examples of vegetative propagation through stems, and in the last case we have leaves. So we'll study now with the case of leaves. The example is begonia. Another example is bryophyllum. Another example is adiantum. So these are the plants which are reproducing through leaves. यानी कि ये जो plants हैं ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं तो अपने लीव्स के थ्रू, यानी कि इनके जो लीव्स होते हैं जब मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उनमें से नए प्लांट्स निकलेंगे। और ये है स्टेम्स के एग्जांपल और ये है रूट्स के एग्जांपल। तो इन सबों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एग्जांपल। हमेशा नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आप लोगों को एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट किस तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो कर रहा है, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू या लीफ के थ्रू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज दिस स्टेम पार्ट, बिकॉज 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, वहां पर इन सारी चीजों को पढ़ा जाता है। ये सारे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली नाम इनके अलग अलग है लेकिन बनते हैं ये सारे के सारे स्टेम से। एंड दीज आर द वंस टेकिंग पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। So hereby your vegetative propagation in terms of NEET syllabus is over. सो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट था। अब यहाँ पर हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखना है। तो एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है रैपिड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रैपिड एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर जो दूसरा एडवांटेज है यूनिपेरेंटल, ठीक है। तो यहां पर दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए, लाइक एज इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कोई भी पेरेंट उससे काम चल जाएगा। और यहाँ पे जो थर्ड
एडवांटेज इसका होता है कि गैमीट फॉर्मेशन मे और मे नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे गैमीट बने या ना बने ये रिप्रोडक्शन हो जाएगा। द अदर पार्ट इज डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत ये है, उसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिक्कत ये आता है इसके साथ, यहाँ पे लिटिल और नो वेरिएशन। अब इसके ये तीन मेन डिसएडवांटेजेस है। क्या है? पहला कि यहाँ पे बहुत ही कम वेरिएशन होगा या तो ना के बराबर होगा। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो वेरिएशन होता है वो अल्टीमेटली इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इसमें वेरिएशंस बहुत कम है तो इवोल्यूशन भी में भी रोल इसका कोई नहीं होगा। एंड अगर वेरिएशंस नहीं है तो उसकी वजह से एक जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो ये है कि अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट चेंजेस नहीं होता है यहाँ पर। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ ये दिक्कत होता है कि अगर एनवायरनमेंट में मेजर चेंज आएगा तो वैसे ऑर्गेनिजम्स अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं वो अडेप्ट कर पाते हैं क्योंकि उनमें वेरिएशंस होता है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा इसका मेजर इशू है कि सिंस वेरिएशंस नहीं है, वेरिएशन की वजह से यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी भी नहीं होता है। सो हेंस योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट इज नाउ ओवर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर अर्थ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो आया कैसे। बिकॉज पहले तो जरूरत ही नहीं थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पहले तो एसेक्सुअल से काम चल जा रहा था। तो बायो में कोई भी प्रोसेस बेवजह का नहीं होता है, बिना मतलब कि रैंडमली कोई भी प्रोसेस अराइज नहीं होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस फिनोमेनन ओरिजिनेटेड इन प्रोटिस्टा एंड मोनिरा, दैट इज बैक्टीरिया में, और जो बैक्टीरिया से जस्ट एडवांस किंगडम है दैट इज प्रोटिस्टा। इन दोनों में सेक्स ओरिजिनेट किया, और वो इसलिए ओरिजिनेट किया क्योंकि जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बट जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करने लगते हैं।
ठीक है। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है मोनिरा एंड प्रोटिस्टा, ये कंडीशंस फेवरेबल है तो एसेक्सुअल और अनफेवरेबल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो इनमें इन्हीं दोनों ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले अर्थ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवॉल्व हुआ या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेनन डेवलप हुआ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज बायो में एक चीज के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, तो यहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फिमिक्सिस भी बोला जा सकता है, एम्फिगोनी भी बोला जा सकता है या सिंजेनेसिस भी बोला जा सकता है। तो ये तीनों नाम बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम लोग टाइप्स देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप्स हैं। पहला है सिंगेमी, ठीक है, एंड दूसरा है कॉन्जुगेशन। ये दो मेन टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अब सिंगेमी भी दो टाइप का होता है। अब यहाँ पे देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट, तो यहाँ पे गैमीट किस टाइप का है उसके बेसिस पे सिंगेमी को चार अलग कैटेगरी में बांटेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमीट, सोर्स ऑफ गैमीट कहने का मतलब कि यहाँ सोर्स क्या होता है गैमीट का, पेरेंट। तो अगर एक पेरेंट से आ रहा है गैमीट या दो पेरेंट से गैमीट आ रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट यहाँ पर चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आइसोगेमी, देन है ओगेमी, देन है एनाइसोगेमी, एंड देन वी हैव होलोगेमी। ठीक है। और जब सोर्स ऑफ गैमीट की बात करें तो यहां पर दो गैमीट दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहला है एंडोगेमी और दूसरा है एक्सोगेमी। ठीक है। तो ये सारे बेसिक टाइप्स के हो गए हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें मेनली यही टाइप है सिंगेमी और कॉन्जुगेशन। सिंगेमी में वो चारों टाइप्स पढ़ने हैं और सोर्स ऑफ गैमीट में हम लोगों को ये दोनों टाइप्स पढ़ने हैं। तो इन जनरल इन सबों के हम लोगों को एग्जांपल्स और फीचर याद रखते हैं। तो दिस इज द योर लेआउट ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो चार कैटेगरीज हमने यहाँ पर लिखे थे उन्हीं कैटेगरीज को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है आइसोगेमी। तो यहां पर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ
ठीक है। तो आइसोगेमी में ऐसे गैमीट्स का फ्यूजन होगा जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी कि किसी भी चीज का एक्सटर्नल फीचर्स को बायो में मॉर्फोलॉजिकल फीचर बोला जाता है। तो देखने में वो दोनों गैमीट्स एक जैसे होंगे, लेकिन उनका फिजियोलॉजी डिफर कर सकता है। फिजियोलॉजिकली का मतलब उनका फंक्शन या उसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो होता है उसका फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर उसका जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है वो डिफर कर सकता है। इसका एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास और मोनोसिस्टिस। The other is anisogamy. तो यहाँ पर साइज में दिखने में कोई डिफरेंस नहीं था आइसोगेमी में, लेकिन एनाइसोगेमी में क्या हो रहा है कि जो दो गैमीट्स है उनका साइज डिफर कर सकता है। जो दो गैमीट्स यहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं उनका साइज कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, या मोटिलिटी कहने का मतलब कि एक गैमीट खुद से चल सकता है और दूसरा गैमीट खुद से नहीं चल सकता है। तो ये दो तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं इन द केस ऑफ एनाइसोगेमी। क्लामाइडोमोनास यहाँ भी एग्जांपल है और यहाँ भी एग्जांपल है। अदर एग्जांपल है मोनोसिस्टिस एंड ह्यूमंस। द थर्ड टाइप इज ओओगेमी। ठीक है, ये जो ओओगेमी है इसमें अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, सिमिलैरिटीज भी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि साइज डिफर कर सकता है या मोटिलिटी डिफर कर सकता है, यानी कि आइदर साइज में डिफरेंस होगा और आइदर मोटिलिटी में डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर साइज और मोटिलिटी दोनों में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास फिर से, एंड द अदर एग्जांपल इज रेड एल्गा। 11th क्लास में आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि रेड एल्गा में जो एक गैमीट होता है वो हिल नहीं सकता है खुद से, और दूसरा गैमीट जो कि मेल गैमीट होता है उसको बोलते हैं एंथेरोजॉइड या फिर माइक्रोगैमीट। इन जनरल बायो में हर जगह यही देखा जाता है कि मेल गैमीट छोटा होता है और वो मूव कर सकता है, और फीमेल गैमीट जनरली मूव नहीं कर पाता और साइज में काफी बड़ा होता है। इसका एग्जांपल हो गया क्लामाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गा है, और जो बाकी के रेड एल्गा होते हैं। द फोर्थ टाइप इज होलोगेमी।
तो यहाँ पर एक अजीब सा अनयूजुअल फिनोमेनन हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट टू पेरेंट्स आर themselves combining to form the daughter cell. That is, the parents are not producing any gamete. Here what is happening exactly is that the parents are themselves confining towards each other. तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पेरेंट होगा और दूसरा पेरेंट होगा, ये दोनों पेरेंट ही फ्यूज कर जाएगा. यहाँ कोई गैमीट बन ही नहीं रहा है, तो कह सकते हैं कि पेरेंट खुद ही गैमीट की तरह यहाँ बिहेव कर रहे हैं. तो एग्जांपल इज यीस्ट. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ गैमीट, दैट इज ऑफ सिंगैमी. इसमें ये बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं हमारे, चाहे वो मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट हो, या फिर आइसोगैमीट्स हो या एनाइसोगैमीट्स हो, उनका टाइप क्या है, वो मोटाइल है या इमोटाइल है, साइज में बड़े हैं या छोटे हैं, मेल है या फीमेल है, या फिर ऑर्गेनिज्म खुद ही गैमीट की तरह बिहेव कर रहे हैं इस केस में. तो ये 4 टाइप के हमारे गैमीट्स हैं. अब जो 2 टाइप के बचे हुए थे वो था एंडोगेमी. यहां पर बेसिकली क्या होता है कि गैमीट्स प्रोड्यूस्ड आर फ्रॉम सेम पेरेंट. एग्जाम्पल टेनिया. टेनिया का जो कॉमन नेम है वो है टेपवॉर्म. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में अगर हम लोग बात करें तो मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस करेगी. लेकिन यहां पर क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा और उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों फ्यूज कर जाएगा. तो ये डिफरेंस होता है एंडोगेमी और एक्सोगेमी में. नाउ वी हैव एक्सोगेमी. एक्सोगेमी में गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट्स. यानी कि यहां पर मेल गैमीट मेल से प्रोड्यूस होगा और फीमेल गैमीट फीमेल से प्रोड्यूस होगा. एग्जाम्पल ह्यूमंस. नाउ जो दूसरा टाइप था वो था कॉन्जुगेशन. तो यहाँ पर एक अनयूजुअल सा फिनोमेनन हो रहा है. हम लोगों ने होलोगैमी में देखा था कि होलोगैमी में 2 पेरेंट्स ही फ्यूज कर गया था, लेकिन यहाँ पर भी 2 पेरेंट्स फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो फ्यूजन है दैट इज टेम्पोररी. यानी कि ये जो पेरेंट्स है वो हमेशा फ्यूज नहीं किए रहेंगे, वो थोड़े टाइम बाद सेपरेट हो जाएंगे. लेकिन आखिर फ्यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो है टू एक्सचेंज देयर मेल प्रोन्यूक्लियर. अब ये यहाँ पर क्या होता है कि जो एक पेरेंट है वो अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल दूसरे पेरेंट को ट्रांसफर करेगा. तो जो पेरेंट जेनेटिक मटेरियल दे रहा है उसे डोनर बोलेंगे और जो रिसीव कर रहा है उसे रेसिपिएंट बोला जाता है.
तो यहाँ पर ये दो पेरेंट्स फ्यूज करेंगे, फिर एक पेरेंट अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे पेरेंट को देगा, और जब दोनों पेरेंट सेपरेट करेंगे तो उनको पेरेंट नहीं बोलेंगे, जो सेपरेट करने के बाद जो सेल्स होंगे उसे बोला जाता है डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, the other is paramecium, तो ये हमारे टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, यानी कि इतने सारे टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनका लाइफ, या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स होते हैं उनका लाइफ में कौन कौन सा फेज आता है, यानी कि उनके लाइफ में जो एडोलेसेंस है या एडल्टहुड है या एजिंग फेज है या फिर किड फेज है या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल फेज है, तो ये सारे फेजेस जो भी एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में आते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्पैन देख लेते हैं। लाइफ स्पैन, तो द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो जब इंसान या फिर किसी भी प्लांट का जर्मिनेशन होता है या फिर इंसान का जन्म होता है, उससे लेकर जब तक वो डेड ना हो जाए तब तक जो उसका लाइफ में टाइम पीरियड होता है उसी को बोला जाता है लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन में जरूरी नहीं है कि हम अननेचुरल इवेंट्स को कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल किसी इंसान का डेथ अगर यंग एज में ही 25 साल में ही किसी कार एक्सीडेंट में हो जाता है तो उसका लाइफ स्पैन 25 साल नहीं मानेंगे। लाइफ स्पैन की हम लोग बात करेंगे तब उस पूरे स्पीशीज की बात करेंगे। तो लाइफ स्पैन जो होता है उस स्पीशीज के हर एक इंडिविजुअल का एवरेज से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि इंसानों में जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो होता है 70 to 80 इयर्स का लाइफ नॉर्मली होता है। हाथियों में 80 से 90 इयर्स का होता है, उसी तरह पैरट्स में बहुत ज्यादा इयर्स का होता है, क्रो में काफी कम इयर्स का होता है, बनाना का फ्यू इयर्स होता है, बनियान ट्री का बहुत सेंचुरीज होते हैं उसमें। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। अब यहाँ पर फेजेस देख रहे हैं कि लाइफ स्पैन में कौन कौन से फेजेस आएंगे। तो जो पहला फेज होता है लाइफ का वो होता है बर्थ। सेकेंड फेज है जुवेनाइल। जुवेनाइल को प्लांट्स में वेजिटेटिव कहते हैं। जुवेनाइल इज यूज्ड इन द केस ऑफ एनिमल्स and vegetative is used in the case of plants। तो birth तो आप लोग जान लो कि birth का मतलब क्या होता है, that is coming of that organism into this world। ये दुनिया में किसी का आना उसका जन्म कहलाता है। तो जन्म के बाद जो लाइफ का दूसरा फेज होता है वो है जुवेनाइल या वेजिटेटिव। यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिज्म अंडरगोज ग्रोथ, तो ये जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज में क्या होता है कि जो बॉडी जन्म लिया है वो बॉडी अपने आप को ग्रो करेगा और अपने आप को डेवलप करेगा। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इंसान की बात करें, जब तुम लोगों का जन्म हुआ था तब से लेकर 11 साल तक तुम लोगों का बॉडी ग्रो किया था, तुम्हारे ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स, टिश्यूज वो सारे डेवलप हुए। जुवेनाइल फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज।
रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर चुके होते हैं और उस फेज में ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। तो यहां तक बॉडी में ग्रोथ हो रहा था, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो ऑर्गन्स डेवलप हुए स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा। देन कम्स एजिंग एंड सीनेसेंस। एजिंग एंड सीनेसेंस, देखो एजिंग एंड सीनेसेंस यानी कि दो अलग अलग फेजेस से मिलकर बना है। सिंस ये दोनों रिलेटेड होता है इसीलिए हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं। तो एजिंग इज प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द बॉडी। तो एजिंग में क्या होता है कि बॉडी का जो फंक्शन है नॉर्मली डिटोरिएट करने लगता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल किसी भी 50-60 साल के इंसान से बात करो तो वो ये बोलेगा कि मेरा यंगहुड में हम जितना एक्टिव थे, जितना फिजिकली फिट थे, अब नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मसल्स और बोन्स वीक होने लगते हैं एज के साथ साथ। तो ऐसा नहीं कि मसल्स टोटली वीक हो चुका है, लेकिन वीक होने का स्टार्टिंग हो चुका होता है उस एज तक। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि सिर्फ मसल की बात नहीं, सिर से पैर तक बॉडी का हर एक ऑर्गन अपना फंक्शन कम करने लगता है। एंड द अदर पार्ट इज सीनेसेंस। इसी में तो सीनेसेंस इज देखो, अगर इंसान अपने बॉडी को बहुत अच्छा केयर करता है, इंसान अपने बॉडी को बहुत फिट रखता है, अपना डाइट बहुत सही रखता है, अपना रूटीन अच्छा रखता है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करता है, काफी बैलेंस डाइट लेता है, तो इंसान अपने एजिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। यानी कि उसका जो बॉडी में डिटेरियोरेशन हो रहा है वो स्लो कर सकता है। लेकिन इंसान कभी भी अपना सीनेसेंस नहीं रोक सकता, यानी कि एजिंग का टर्मिनल मतलब एजिंग का लास्ट वाला पार्ट, और इररिवर्सिबल यानी कि ये जो सीनेसेंस का फेज है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। प्लांट्स में पत्ते का पीला होना, लीव्स येलो होने लगते हैं या लीव्स गिरने लगते हैं, वो सीनेसेंस का पार्ट है। इंसानों का बाल होने लगता है, फेस पे रिंकल्स आ जाता है, बॉडी में मसल्स वीक होने लगता है, वो सारा साइंस ऑफ सीनेसेंस होता है। एंड सीनेसेंस के बाद लास्ट फेज आता है जिसको बोलते हैं डेथ। तो डेथ नॉर्मली तुम लोग जानते हो क्या होता है कि बॉडी हमेशा के लिए स्टॉप कर चुका होता है। तो इट इज फाइनल इररिवर्सिबल तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ इज इररिवर्सिबल, ये फाइनल है, इसके बाद कोई और फेज नहीं आता है। फिर उसके बाद जो इररिवर्सिबल सेसेशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है? तो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन, फॉर एग्जांपल ब्रेन का थिंकिंग एबिलिटी, हार्ट का ब्लड पंपिंग एबिलिटी, लंग्स का ब्रीदिंग एबिलिटी, स्टमक का डाइजेस्टिंग एबिलिटी, मसल्स का मूविंग एबिलिटी, ईयर्स का हियरिंग एबिलिटी, आईज का सीइंग एबिलिटी। तो सारा बॉडी का जो फंक्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है। That is what death is all about। यानी कि डेथ में बॉडी का सारा फंक्शन एक फुल स्टॉप पे आ जाता है। जस्ट लाइक कि सेंटेंस फुल स्टॉप पर खत्म होता है, तो डेथ हमारे लाइफ स्पैन का फुल स्टॉप होता है। There is nothing after death। So these were the all the lifespans of a normal sexually reproducing organisms। So now we will study sexual reproduction in a bit more detail. So before that, since we have studied lifespans of various organisms and various phases of a lifespan,
We are going to now study about the various types of plants and animals available on the planet. So first is monocarpic plant. Monocarpic plants. Example is bamboo. बैम्बूसा ट्यूटा। तो एक्चुअली में बैम्बू में बहुत सारे टाइप्स के बैम्बूस होते हैं, उनमें से जो मेन है वो है बैम्बूसा ट्यूटा। ये बैम्बूसा ट्यूटा अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर होता है। एंड द अदर टाइप इज पॉलीकार्पिक। तो these flower many times in their lifetime. Example is rose. तो ये तो है वो प्लांट्स कितने बार फ्लावर देते हैं, इसी से उसका क्लासिफिकेशन। द अदर थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो गए। First one is annual. So these are the plants which complete their life cycle in one season. तो ये वैसे प्लांट्स होते हैं जिनका की लाइफ साइकिल एक ही साल में या फिर एक ही सीजन में पूरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो गेहूं का प्लांट होता है दैट इज व्हीट, दैट लास्ट फॉर अबाउट 5 मंथ। राइस प्लांट दैट इज पैडी प्लांट लास्ट फॉर अबाउट 4 मंथ्स। तो इन लोगों के लिए 1 ईयर तो नहीं बोला जा सकता ना, तो इन दैट केस वी विल से सीजन। फॉर एग्जांपल बिटर गर्ड, नॉर्मल गर्ड्स, पम्पकिंस, दीज लास्ट अ फ्यू मंथ्स। तो उनमें ईयर का यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू से सीजन। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक साल तक भी रह सकते हैं, तो उस केस में भी उसको एनुअल ही माना जाएगा। एंड अदरवाइज जो प्लांट्स एक सीजन में फ्लावर करके डाई हो जाते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अदर इज बाइनियल। These plants में एक स्पेशलिटी होता है, आपको समझना है लोगों को कि यहाँ पर ये प्लांट्स 2 सीजन तो चलते हैं, लेकिन क्या दोनों सीजन में फ्लावरिंग होगा? तो नहीं होगा। पहले सीजन में सिर्फ ग्रोथ होगा। These plants undergo growth in first season and produce flowers in next season. तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 सीजन तो ये प्लांट चल रहा है, लेकिन पहले सीजन में ये प्लांट में क्या हो रहा है कि सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, और सेकेंड सीजन में यानी कि जो दूसरा सीजन है इसका या फिर नेक्स्ट सीजन है, वो नेक्स्ट सीजन में इसमें फ्लावर आ रहे हैं। The third one is perennial. These plants
अब जनरली ऐसा होता है कि जो भी पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं वो पेरेनियल होते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो हमारा बैम्बू प्लांट है वो पेरेनियल तो है लेकिन वो पॉलीकार्पिक नहीं है। फॉर एग्जांपल बैम्बू प्लांट का लाइफ स्पैन 50 से 100 साल होता है, तो यहाँ पर इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो बैम्बू प्लांट है वो पेरेनियल है क्योंकि 2 साल से ज्यादा चल रहा है। लेकिन क्या वो पॉलीकार्पिक है? तो ऐसा नहीं है, बैम्बू ओनली वंस होता है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, इसको नोट करके लिख रहे हैं हम लोग। तो नॉर्मली perennial plants are polycarpic. एग्जाम्पल मैंगो। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमेशा होगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन हो गया बैम्बू, एक्सेप्शन बैम्बू। तो बैम्बू एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि बैम्बू पेरेनियल तो है लेकिन वो मोनोकार्पिक है, पेरेनियल एंड मोनोकार्पिक। तो नॉर्मली ऐसा मानेंगे कि जो हमारा बैम्बू प्लांट है वो पेरेनियल होगा, लेकिन नॉर्मल जो अदर केसेस है उनमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ पॉलीकार्पिक प्लांट ही पेरेनियल हो पाएंगे। बैम्बू इज एन एक्सेप्शन। So these are the two types of plants on the basis of their either flowering and on the basis of their duration. There are a few other things like estrous cycle, menstrual cycle, seasonal breeders, continuous breeders. तो these things are concerned with animals. ये अभी जो हमने पढ़ा वो plants के लिए पढ़ा था, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो animals के लिए। तो उस point of view से you have to study a few more points like seasonal breeders, तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि साल भर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको बोला जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और जो साल के किसी एक सर्टेन टाइम पे ही रिप्रोड्यूस कर पाते उन्हें बोला जाता है सीजनल ब्रीडर्स। द अदर पार्ट दैट यू हैव टू नो इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रस साइकिल के बीच में डिफरेंस है तो सीधा देख लेते हैं, तो फिर उस और शॉर्ट स्टडी करने की जरूरत ही नहीं होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें।
प्राइमेट्स एनिमल्स का एक कैटेगरी है जिसमें बंदर, लंगूर और हम लोग यानी कि मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। और ये जो ईस्टर साइकिल है ये नॉन प्राइमेट्स में होता है। हमारे ह्यूमंस वाले केस में यूट्रस के 3 लेयर होता है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनका जो एंडोमेट्रियम होता है वो टूट के बॉडी से बाहर चला आता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन यहाँ पर एंडोमेट्रियम जो होता है ईस्टर साइकिल में वो टूटता तो है बॉडी से लेकिन फिर वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। द अदर डिफरेंस इज ब्लीडिंग। यहां पर ब्लीडिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे जो चौथा और लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, दैट इज व्हेन द फीमेल इज अंडरगोइंग मेंस्ट्रुएशन, द एबिलिटी और द वांट टू हैव सेक्स इंक्रीजेस मेनी फोल्ड। बट इन द केस ऑफ ईस्टर साइकिल ये जो सेक्स अर्ज होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें सेक्स अर्ज नहीं बढ़ता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और डिफरेंस ये है कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है और वो काफी शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक बार ईस्टर साइकिल के बाद एक फेज ऑफ रेस्ट होता है, वहां पर डिफरेंट फेजेस होंगे उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। दैट इज वो जो हम लोग आगे रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे उसमें अलग अलग फेजेस आते हैं मेंस्ट्रुएशन में। फॉर एग्जांपल फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ब्लीडिंग फेज, तो उनमें फेजेस में डिवाइडेड होगा और यहाँ पर वो फेजेस में डिवाइडेड नहीं होगा। तो अगर हम एक ईस्टर साइकिल की बात करें तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा, लेकिन उसके बाद एक पीरियड ऑफ रेस्ट में ये चला जाता है। बट वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होगा, अगर हम एक साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लंबा होगा, ईस्टर साइकिल छोटा होगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पर हर ईस्टर साइकिल के बाद फीमेल अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक्स हम लोग देख लिए, एनिमल्स के टाइप, प्लांट्स के टाइप देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो उन इवेंट्स में सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, देन वी हैव फर्टिलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में भी दो इवेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड द अदर वन इज गैमीट ट्रांसफर। एंड देन इज फर्टिलाइजेशन और फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो पार्ट है। द फर्स्ट वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस
and the last part is birth. So these are the three basic steps in sexual reproduction. The first one is pre-fertilization, fertilization and then post-fertilization. तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सेस. इन ह्यूमंस के केस में हम लोग इसको स्पर्म और ओवम बोल सकते हैं. प्लांट्स के केस में वी कैन कॉल इट पॉलन ग्रेन्स एंड एग न्यूक्लियस. एंड देन गैमेट का ट्रांसफर होता है, यानी कि मेल से फीमेल तक गैमेट का ट्रांसफर होगा. प्लांट्स में इसे पॉलिनेशन बोला जाता है, एनिमल्स में इसे कॉप्यूलेशन बोला जाता है. एंड देन होता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट जुड़ जाएगा. तो मेल और फीमेल गैमेट के जुड़ने से क्या बनेगा, जाइगोट. और फिर वो जाइगोट जब बेबी या फिर एम्ब्रियो में डेवलप करता है तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. एंड देन एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाता है तो उसका बर्थ होता है. तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स इन रिप्रोडक्शन. अब इनमें से एक एक स्टेप्स को सीक्वेंस में देखेंगे. फर्स्ट वाला था गैमेटोजेनेसिस. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और सेक्स सेल्स. ठीक है. इन द केस ऑफ एनिमल्स ये क्या होंगे, स्पर्म एंड ओवम. एनिमल्स के केस में गैमीट्स को बोला जाएगा स्पर्म एंड ओवम. प्लांट्स के केस में इसे पॉलन ग्रेन कहा जाएगा एंड एग न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस. अब जब आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं हम लोग को प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, तो दोनों के अंदर डिटेल में गैमेटोजेनेसिस हम लोग को पढ़ना है. प्लांट के केस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है और एनिमल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. चैप्टर 2 एंड 3 में हम लोगों को यही सारे स्टेप्स डिटेल में पढ़ने हैं. द अदर वन इज गैमेट ट्रांसफर. तो इसे प्लांट्स के केस में पॉलिनेशन कहा जाता है. प्लांट्स में पॉलिनेशन कहेंगे इसे. ठीक है. एनिमल्स के केस में इसे कॉप्यूलेशन कहा जाता है. अब प्लांट्स में जो हायर प्लांट्स है उन्हीं में फ्लावर्स होगा, बट जो लोअर प्लांट्स है इन एल्गा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि वाटर के थ्रू ही गैमीट्स का ट्रांसफर हो पाता है, लेकिन पॉलिनेशन कैन अकर थ्रू इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है. तो इंसेक्ट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के सबसे मेन एजेंट्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर एनिमल्स लाइक स्नेक्स, स्नेल्स, बर्ड्स एंड bats can also take part in pollination. The other medium is air or water. तो पॉलिनेशन एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो सकता है. Insects cannot take help in the reproduction of these plants. तो इंसेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ वैसे प्लांट्स में होंगे जहां पर कि सिर्फ एनिमल्स सिर्फ हायर प्लांट्स में या फिर हायर एनिमल्स की वजह से वो पॉलिनेशन करा पाएंगे. तो ये हो गया गैमीट ट्रांसफर. अब उसके बाद है फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. तो फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इफ इट टेक्स प्लेस आउटसाइड फीमेल बॉडी तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब जनरली अगर फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो दैट मीन्स कि जो फीमेल बॉडी है वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है. तो जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चे का एडल्ट होने का चांसेस कम होता है, बिकॉज बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है. तो जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, वो उसका शिकार इजीली कर सकते हैं. तो अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चे के सर्वाइव करने के एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो हमारा पहला पार्ट था वो था एम्ब्रियोजेनेसिस. जो पहला पार्ट है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस. तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एंड देन फीटस. तो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो डेवलप करके फीटस बनता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. एंड द लास्ट पार्ट इज बर्थ. ठीक है. तो बर्थ जो होता है उसकी बेसिस पे एनिमल्स को तीन तरह की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे. द फर्स्ट इज ओविपेरस, द सेकंड वन इज विविपेरस, and the third category in this is ovoviviparous. So these are animals which lay eggs. These animals lay eggs. तो ये सीधे अंडे को जन्म देते हैं और ये जो है सीधा लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं, दैट इज बेबीज. तो ये तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किस टाइप का बच्चे को जन्म देते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाइड है. पहला ओविपेरस जो कि अंडे देते हैं, सेकंड जो कि सीधा यंग बर्ड्स को बर्थ देते हैं, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग. यहाँ पर क्या होगा कि इसमें एग का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन अंडा बनने के बाद भी फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा. दैट इज फीमेल रिटेन्स द एग इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो उसके बाद भी जो फीमेल है वो अंडे को अपने अंदर रखेगी, लेकिन जो फीमेल है वो अंडे को न्यूट्रिशन नहीं दे सकती है क्योंकि उनमें प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स मदर टू द बेबी. तो वो प्लेसेंटा एब्सेंट होता है तो अंडे को वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकती है.
टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो कि बर्थ होते हैं किस फॉर्म में, उसके बेसिस पे क्लासिफाइड है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पार्थेनोजेनेसिस। So the last topic of this chapter will be parthenogenesis. ठीक है? So parthenogenesis literally means virgin birth. पार्थेनोजेनेसिस का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है वर्जिन बर्थ। बायो के टर्म्स में पार्थेनोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। पार्थेनोजेनेसिस occurs in those organisms where fertilization does not take place। तो इसके टाइप्स होते हैं मेनली टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट और कंप्लीट। तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में होगा जिनमें कि मेल्स एब्सेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होंगी। यानी कि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होगा इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं और यहां पे सिर्फ फीमेल्स होंगी। तो यहाँ पर मेल्स एब्सेंट होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स में फीमेल्स ही ओनली प्रेजेंट होंगी। इसका एग्जांपल है लैसर्टा सैक्सिकोला अर्बेनिया का। एंड द अदर एग्जांपल इज टिफ्लिना ब्राह्मीना। This Tiflina brahmina is the smallest snake of India. It is only approximately 15 centimeters long. And ये एक तरह का lizard होता है जो कि अर्मेनिया में पाया जाता है, around the northern part of Asia. The second is cyclic parthenogenesis. तो पहला था complete या और दूसरा है cyclic parthenogenesis. Here तो साइक्लिंग में क्या होता है कि पार्थेनोजेनेसिस भी होगा और नॉर्मली फर्टिलाइजेशन भी होगा। यहां पर एग्जांपल है जो कॉमन हम सब लोगों को पता होगा, हनी बी, देन देयर आर एफिड्स, देन देयर इज wasps, then there is a bird called turkey, then another one is called rotifers, etc.
तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होगा और पार्थिनोजेनेसिस दोनों होता है। द थर्ड वन इज पीडोजेनेटिक। तो कई बार क्या होता है कि पार्थिनोजेनेसिस लार्वा में ही हो जाएगा, दैट इज लार्वा जो उसका बच्चा होता है ऑर्गेनिज्म का, वो एडल्ट होगा ही नहीं, उसी लार्वा में ही पार्थिनोजेनेसिस अगर हो जाएगा। तो व्हेन तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक पैरासाइट है जिसे बोलते हैं लिवर फ्लू। इसमें बच्चे में ही पार्थिनोजेनेसिस हो जाता है, दैट इज उसके लार्वा में ही पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा। तो वैसे एक पार्थिनोजेनेसिस को बोला जाता है पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। तो ये तो हुआ उस बेसिस पे कि पार्थिनोजेनेसिस सिर्फ हो रहा है सिर्फ, या फिर उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, या फिर वो जो पार्थिनोजेनेसिस है वो बच्चे में हो रहा है या बड़ा में हो रहा है। ये तो उसके बेसिस पे 3 टाइप का पार्थिनोजेनेसिस हुआ। अब 3 और टाइप का पार्थिनोजेनेसिस पढ़ना है हम लोगों को, जिससे कि जो कि इस बात से डिटरमाइंड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है वो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगी, या मेल और फीमेल दोनों होगा। इस कैटेगरी में ऐसा होता है कि जो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस है उससे सिर्फ मेल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन फीमेल जो होंगी वो फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होंगी। इन दिस केस females are produced by fertilization। तो मेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस से और फीमेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं फर्टिलाइजेशन से। द सेकंड वन इज हेलिटोकी। Here what happens ki only females are produced by parthenogenesis। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी हम लोग देख चुके हैं जस्ट। पहला था लैंसर्टा सैक्सिकोला अर्बेनियाका, एंड दूसरा था टिफलिना ब्राह्मीना। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एम्फीटोकी। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस हो रही थी पार्थिनोजेनेसिस से, यहां पर मेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे पार्थिनोजेनेसिस से। यहां पर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस।
यहाँ इसके जो एग्जाम्पल है वो है एफिड्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप का जो पार्थेनोजेनेसिस है वो इस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पार्थेनोजेनेसिस से मेल हो रहा है या फीमेल है या दोनों है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। और इसके पहले जो 3 टाइप्स के पार्थेनोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़े वो अकरेंस के बेसिस पे थे, दैट इज कि अकरेंस टोटली हो रहा है या पार्शियली हो रहा है या फिर लार्वा में हो रहा है या एडल्ट में हो रहा है। तो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th, दैट इज ऑन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो भी माइनर डिटेल्स यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाया वो जानबूझ के इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है हमारा दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन, वहां पर उसी चीज को डिटेल में पढ़ना है। तो एक चीज को 2 जगह एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी माइनर चीजें मिसिंग है वो नेक्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड उसके बाद जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स दैट इज ह्यूमन बीइंग्स है उस चैप्टर में वो आ जाएगा। तो हियर बाय योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th इज कंप्लीटेड। एंड इसके जो वर्कशीट है एंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके बेसिस पे बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आज ही के लेक्चर में जो जूम का डाउट क्लास होने वाला है वहां पर आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज प्रैक्टिस इट ऑन द सेम डे दैट यू आर स्टडीइंग दिस। इससे होता है कि ब्रेन में ये सारे कंटेंट तुम्हारे फ्रेश रहेंगे और वो फ्रेशली बनाओगे तो क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व हो जाएंगे। तो इस बैच में काफी स्पीड में सिलेबस चल रहा है, आपको पता है ये चीज, और बहुत सारी चीजें मिस हो सकती है या फिर हो सकती है बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में ना आए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जूम में जो लाइव डाउट क्लास चलेगा तो जो भी कंटेंट यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई भी चीज आपको लगता है कि मिसिंग है या कुछ भी या फिर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो वो जूम के ऑनलाइन डाउट क्लास में आप लोग पूछ सकते हो। तो जो मेन कंटेंट वाला पोर्शन था यहाँ पर ये इस चैप्टर का फिनिश ऑफ हो जाता है। तो सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।